وفاقی کابینہ نے کالعدم TLP پر سے پابندی ہٹانے کی منظوری دے دی. وزارت داخلہ کالعدم تحریک لبیک سے پابندی ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کرے گی. پنجاب حکومت نے وفاقی کابینہ کو کالعدم تنظیم سے پابندی ہٹانے کی سمری بھیجی تھی. پنجاب حکومت کی سمری میں کہا گیا تھا کہ تنظیم نے آئندہ پرتشدد نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے. TLP مستقبل میں آئین پاکستان اور ملک کے قوانین کا احترام کرے گی. حکومت پنجاب نے تنظیم سے پابندی ہٹانے کا فیصلہ تنظیم کی یقین دہانی اور وسیع قومی مفاد میں کیا ہے. This should be gone, simply gone. Yeah! Shot on! And New Zealand. Oh, gone! Just like that in the follow-through. Tailed in. Got there, Vaccination! بس زیادہ بات نہیں چیز آج کے بعد ملاقات نہیں چیز. مقابلہ افغانستان اور نیوزی لینڈ کا تھا. T20 ورلڈ کپ سے پتہ بھارت کا صاف ہو گیا. افغانستان خود تو ٹورنامنٹ سے باہر ہوا ہی بھارت کو بھی گھر جانے کا راستہ دکھا دیا. نیوزی لینڈ ٹورنامنٹ کی سیمی فائنل میں پہنچ گیا. سیمی فائنل میں پاکستان کا سامنا کس سے ہوگا یہ فیصلہ بھی آج ہو جائے گا. پاکستان نے اسکاٹ لینڈ کو شکست دی تو گرین شرٹس اور کینگرو سیمی فائنل میں مد مقابل ہوں گے. پاکستان، انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیم T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی. میں نے بھی شعیب اختر کو بول دیا. میں نے کہا یار اس بار کیا فائدہ کھیلنے کا آپ کا، آپ ہمیں وقوبری دے دو یار. بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے گیا نا بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے گیا نا کیا ہوا؟ کچھ بچا ہی نہیں بیٹا، کچھ بچا ہی نہیں بندی، کچھ بچا ہی نہیں. کچھ ہی دن پہلے کچھ بچا ہی نہیں. بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے گیا. T20 ورلڈ کپ سے بھارت کیا آؤٹ ہوا؟ سوشل میڈیا پر منچلوں کے ہاتھ میں نیا کھیل آ گیا. کسی نے سوٹ کیس کے ساتھ اداس روی شاستری کو دکھایا. کسی نے کہا کہ کابل براستہ ممبئی. کسی نے نواز صدیقی کی تصویر بطور مداح لگا دی. کسی نے بالی ووڈ کی فلم کا پوسٹر شیئر کر دیا. کسی نے ہربھجن سنگھ سے پوچھا واک اوور چاہیے. بٹ اگر افغانستان نہیں ہرا پاتے نیوزی لینڈ کو تو پھر بیگ پیک کر کے گھر جائیں گے اور کیا. کرو ہم کہاں ہیں. یہ جو آپ اپنے گھر کے شیر ہیں، ایک تو یہ بدلیں، کیونکہ اگر جب تک آپ کنسسٹنٹلی باہر جا کے ہر ایک فارمیٹ میں نہیں جیتیں گے تب تک شاید ہمارے دیش والوں کی امیدیں بھی اتنی بڑھنی نہیں چاہیے. بڑے پلیئر ہونے سے بڑا امپورٹنٹ ہے بڑی ٹیم ہونا، ایک جٹ بن کے کھیلنا. یہاں پر جو کمی آ رہی ہے وہ ایک جٹ بن کر رزلٹ نہیں دے پا رہی. انڈیویجول پرفارمنس بہت بہتر ہو رہی ہے. کرکٹ ہم نے کھیلی نہیں اس ٹورنامنٹ میں. اگر آپ کو ٹورنامنٹ میں کھیلنا تھا تو آپ کے 5 کے 5 میچ جیتنے تھے اور ٹاپ کرنا تھا گروپ کو. اگر آپ کو کرکٹ تب مانی جاتی ہے ہاں یہ کرکٹ جیسے انگلینڈ کھیل رہا ہے، جیسے پاکستان کھیل رہا ہے، یا آسٹریلیا کھیلا ہے اور نیوزی لینڈ کھیلا. آپ کو ایسی کرکٹ کھیلو گے تو کوالیفائی کی دوڑ میں ہوگا. ہم کہاں ہیں. باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی. ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد بھارتی میڈیا نے اپنی ٹیم کا پوسٹ مارٹم کر دیا. پاکستان سے سیکھنے کا مشورہ دے دیا. کوہلی 11 کو گھر کے شیر، گھر سے باہر ڈھیر کا تانا بھی مار دیا. That's why you can't overpitch, because it costs you 6. And he just blisters it down the ground, does he? He does. So back he does, and away it flies. Oh, hello! There are going to be 2 arms raised again here. Oh, he goes short. He goes short. He pays the heaviest price. شعیب ملک نے اسکاٹ لینڈ کے بالرز کو دھو ڈالا. شارجہ میں فائر ورکس.
6 छक्के लगाए, सिर्फ 18 गेंदों पर 54 रन बना डाले। शोएब मलिक छक्के लगाते रहे, उनकी अहलिया सानिया मिर्जा तालियां बजाती रहीं। कप्तान बाबर ने सिर्फ 47 गेंदों पर 66 रन बनाए। रिजवान जल्दी आउट हुए तो हफीज ने बाबर का खूब साथ निभाया, 19 गेंदों पर 31 रन बनाए। पाकिस्तान का जीत के लिए स्कॉटलैंड को 190 रन का हदफ के ताक़ुब में स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी। Oh, it's a full toss, and it's put away in 48. Rizwan puts it away, and that 6 brings up a half century. पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान एक साल में सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल का 2015 में 1665 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक हुकूमत साजिश करके जब इलेक्शन चोरी करे तो फिर मेरी नाकस राय में आर्टिकल 6 लगता है। आज अगर हमारी अदलिया मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है तो आज उसका इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून का दस्का इलेक्शन रिपोर्ट पर अदलिया से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि दस्का इलेक्शन चोरी की मीटिंग में बहुत से PTI के लोग शामिल थे। ख़वातीन प्रेजाइडिंग अफसरान से कहा गया कि हुकूमत की मदद करें, धांधली पर मुदाखलत न करें। रिपोर्ट में लिखा है पुलिस अमले की हिफाजत नहीं अगवा कर रही थी। आज पाकिस्तान की अदलिया का इम्तहान है। आज महंगाई इसीलिए है कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि PDM बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है। PDM में शामिल जमातों का ना तो कोई नजरिया है और ना कोई एजेंडा। लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च, हम घबराने वाले नहीं। माजी की तहरीकों की तरह इस बार भी PDM को मायूसी होगी। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि दस्ता इलेक्शन पर जो भी कानून कहेगा वो किया जाएगा। बच्चे लकड़ियां चूड़ी आनी तो इटा रखी तो लकड़ी रोटियां दिखे बच्चियां रोटियां खातियां 2000 लाया तो चीज़ा जोड़ियां। हम तो इतवार का इंतजार करते हैं, बाकी दिन पे तो रोजा रखते हैं कि इतवार बाजार में आएंगे कुछ सस्ती चीज मिलेगी। यहाँ पे भी 140 में चीज मिल रही है। ये अवाम का तो पता नहीं अभी क्या होगा, अल्लाह ही बेहतर जाने। हर तरफ महंगाई का दौरा। हफ्ता बाजार में भी खरीदारी दुश्वार। महंगी सब्जी मुंह चिढ़ा रही है। फलों के दाम होश उड़ा रहे हैं। टमाटर खुद लाल नहीं मगर दाम सुनकर शहरी लाल पीले हो गए। इस्लामाबाद में 150 रुपए, पेशावर में 160 रुपए फी किलो में फरोख्त। पेशावर में आलू 120 रुपए, मटर 400 रुपए किलो तक पहुंच गए। क्वेटा में डबल रोटी यकदम 20 रुपए महंगी। खुर्दनी तेल और घी की कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा। कीमतें 46 रुपए तक बढ़ा दी गयी। लाहौर के लंडा बाजार आने वाले भी मायूस। पाकिस्तान महंगाई के एतबार से दीगर ममालिक के मुकाबले में अब भी बेहतर है। महंगाई बढ़ने पर वज़ीर आज़म का जवाब। इमरान खान कहते हैं कि कोरोना की बंदिशों के बायस आलमी सतह पर अशिया जरूरिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई का सैलाब आ गया है। मुल्क में 6 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई की वजह से गरीब अवाम का जीना मुश्किल हो चुका। मौलाना फजल रहमान का वाना में खिताब। कहा इमरान खान के हाथ पर बैरत के लिए तैयार नहीं। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हमारी तहरीक जारी है। यूरोप का अमीर तरीन मुल्क के जर्मनी के अंदर 50 साल की जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन जो है ना 50 साल में सबसे हाई है। आज के अखबारों में बड़ी हेडलाइन थी, पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी हो गई। ऐसे लगा जैसे बड़ा जुर्म हो गया। यहाँ पर पूरी बात नहीं बताई जाती। मामले खसूसी शहबाज गिल महंगाई पर नई मंतक ले आए। महंगाई अकेले पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान के अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा दी गई कि बिजली की कीमतें बढ़ा दी गईं। ऐसा लगा जैसे कोई जुर्म हो गया है। अमरीकी जरीदे का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका में महंगाई का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जर्मनी में कोयला महंगा होने के सबब पावर प्लांट बंद कर दिए गए। भारत में पावर प्लांट को कोयला बचाने के लिए बंद किया जा रहा है।
वफाकी वजीर असद उमर की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कोटरी में जलसे से खिताब में कहा, वफाकी हुकूमत सिंध में 2 करोड़ 18 लाख वैक्सीन लगा चुकी। सिंध हुकूमत ने सिंध में एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई। ये सिर्फ सिंध के नाम पर वोट लेते हैं। और आदिल शाह जवाब दें, सिंध और पंजाब में अपनी गंदम उगा रहा है। पंजाब में 55 और सिंध में 86 रुपए किलो आटा क्यों मिल रहा है? सबसे बड़ा चीनी कंट्रोल करने वाला जरदारी है। 2023 में जब ये वोट मांगने निकलेंगे, सिंध के अवाम कहेंगे मरसूं मरसूं वोट न देसूं। झूठे मुनाफिक तर्जुमान वफाकी हुकूमत के इस बात को वाज़ेह कर दें, कौन सी 3 शुगर मिले हैं जिनको सिंध हुकूमत ने बंद कराए। क्या खुसरो बख्तियार, मोनिस इलाही और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स चल पड़ी हैं? झूठे और मुनाफिक तर्जुमान बताएं, सिंध में कौन सी 3 शुगर मिलें बंद हैं? किसने बंद कराई हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने वफाकी हुकूमत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, आइन के मुताबिक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट विफाक का काम है, सूबे का नहीं। शोरों की लिस्ट बड़ी है, उन्हें अब आस पास के अलावा सामने भी देखना होगा। कराची के इलाके मलीद में नाजिम जोखियों के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। मकतूल के पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात, सर, चेहरे, हाथ, पांव पर नील के बड़े बड़े निशानात पाए गए। मेडिकल लीगल रिपोर्ट सामने आ गई। एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने कहा कि दिमाग के अंदर खून के लोथड़े थे। सर पर चोट के निशानात भी पाए गए। हाथ पांव बांधने, हड्डियां टूटने और फंदा लगाने, लटकाकर गला घोंटने के निशानात नहीं मिले। पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने मुल्क को लूटा, मुल्क कर्जों में डूबा मिला, जिसको इमरान खान ने वापस करना है। सख्त वक्त का मुकाबला करने से कौमें बनती हैं। पूरी दुनिया में महंगाई की लहर चल रही है। सूबे में अजनास की कमी को पूरा करने के लिए इकदाम किए हैं। 10 लाख रुपए सूबे के हर शहरी की जेब में इलाज के लिए पड़े हैं। हम किराए के कारकुन या मदरसे के तलबा नहीं लाए हैं। के रहनुमा इंजीनियर रवीज मुकाम ने कहा है कि अवाम ने दलाजाक रोड पर PTI को उनका हकीकी चेहरा दिखा दिया। वज़रा 20 से ज्यादा मेंबरान असेंबली, सैकड़ों अहदेदार, मुशीरों, पटवारियों और दीगर सरकारी मुलाजमीन को मिलाकर भी 4000 अफराद को जमा नहीं किया जा सका। वजीराबाद में कलअदम तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन 10वें रोज भी मौजूद। दरियाई चिनाब के पुल पर से रुकावटें हटा दी गईं। GT रोड 15 रोज बाद एक तरफ से बहाल। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली साइड पर दोनों तरफ से ट्रैफिक गुजर रही है। वजीराबाद में इंटरनेट सर्विस आज भी बंद है। डस्का रिपोर्ट आ चुकी, अब कार्रवाई की जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। बयान में कहा कि वोट चोरी साबित हो चुकी। इमरान नियाजी साहब ताकतवर हैं, खुद को कानून के नीचे लाएं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि महंगी तरीन LNG खरीद कर हुकूमत कौम पर मजीद जुल्म ढा रही है। $30 से जायद फी MMBTU की खरीदारी एक और बड़ा और संगीन स्कैंडल है। हुकूमत के मुजरिमाना रवैये की कीमत अवाम से वसूल की जा रही है। गैस के मुमकिना बहरान से बचने के लिए पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने तारीख का महंगा तरीन LNG कार्गो खरीदने का फैसला कर लिया। नवंबर में 2 LNG कार्गो सप्लाई से 2 आलमी कंपनीज ने माजरत की थी, जिसकी बहाली के लिए बातचीत जारी है। सरकारी टेलीविजन ने स्पीडस्टर शोएब अख्तर को हर्जाने का नोटिस भेज दिया। रावलपिंडी एक्सप्रेस से मजबूरी तौर पर 10 करोड़ 33 लाख रुपए का हर्जाना तलब। शोएब अख्तर कहते हैं सरकारी टीवी ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट आए बगैर नोटिस भेज दिया। शोएब अख्तर का नुमान न्याज अब सरकारी टीवी के MD के खिलाफ हाई कोर्ट में केस करने का ऐलान। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा है कि एक वक्त के खाने के लाले पड़ गए हैं। दिन में गैस नहीं, रात में बिजली नहीं, तबाही आ नहीं रही, तबाही आ गई है। भुट्टा विलेज केमाड़ी में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि गजब खुदा का कि बिलावल भुट्टो इमरान खान के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी इमरान खान की नाअहल हुकूमत के पीछे छुपना चाहती है। सिर्फ गो न्याजी गो नहीं, बल्कि गो जरदारी गो के बगैर सिंध में कोई तब्दीली नहीं आएगी।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि निकाह से पहले शुबहात दूर करने के लिए निकाह नामे में खत्म नबूवत का हलफनामा बहुत जरूरी है। पंजाब असेंबली ने निकाह नामे में खत्म नबूवत का हलफनामा शामिल करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। अल्लामा जुबैर अहमद ज़हीर से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही का कहना था, हमारी कोशिश है पंजाब असेंबली में कानून साजी इस्लामी उसूलों के मुताबिक की जाए। पंजाब असेंबली कुरान एक्ट और खत्म नबूवत से मुताल्लिक़ कानून भी मुत्तफ़िक़ा मंजूर कर चुकी। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी मजहबी हम आहंगी ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि कुछ इश्तहारात ऐसे हैं जो बच्चों के साथ नहीं देखे जा सकते। इश्तहार अगर ख़वातीन के मुतालिक हैं तो उसमें ज़रूर ख़वातीन हों, लेकिन अगर इश्तहार मर्दों के मुतालिक है तो उसमें मर्द रखें। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत मर्द हैं, यहाँ मर्दों की कोई कमी नहीं। डेंगू मच्छर ने वार करके लाहौर में 4 पिंडी में एक शख्स की जान ले ली। सूबे में डेंगू से अब तक 68 अफवात हो चुकी। 24 घंटों में पंजाब में मजीद 525 अफराद डेंगू के हमलों से मुतासर। इस्लामाबाद में 86 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। लाहौर में डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात नायाब, मुनाफाखोर मौके से फायदा उठाने लगे। बलोचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में सरदार सालेह भोतानी, ज़हूर अहमद बुलेदी, सरदार अब्दुर्रहमान केतरान और नवाबजादा तारिक मक्सी भी शामिल। गवर्नर सैयद ज़हूर अहमद आगा ने सूबाई काबीना के अरकान से हलफ लिया। 54% ताजिर मुल्क में कारोबार की मौजूदा सूरत हाल पर मुतमईन। मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ गैर यकीनी में इजाफा। गैलप पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की सहमाही रिपोर्ट के मुताबिक अच्छे मुस्तकबिल से मायूस ताजिरों की तादाद 29% से बढ़कर 39% तक जा पहुंची। मुल्क की समत को दुरुस्त न समझने वालों की शरह में भी 22% इजाफा। सीबी सामान की खरीद फरोख्त करने वाले सबसे ज्यादा मुतमईन, तादाद 68%। खिदमात का शोबा भी 64% तक मुतमईन। सर्वे में 580 शोबों की आरा शामिल की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुस्लिमों के लिए नए कवानीन की मंजूरी दे दी गई। नए खानदानी कवानीन रियासत अबूधाबी में मुकीम गैर मुस्लिम तारिकीन पर लागू होंगे। ये कवानीन गैर मुस्लिमों की शादी, तलाक, शोहर और बीवी के हुकूक, वाजिबात, तलाक की सूरत में जायदाद की तकसीम, बच्चों की किफालत और माली मामलात से मुतालिक हैं। रियासत में मुकीम गैर मुस्लिमों को अपनी पूरी जायदाद या हिस्सा किसी को वसीयत करने का इख्तियार होगा। गैर मुस्लिमों के खानदानी कवानीन के लिए अदलिया के तहत अलग यूनिट कायम किया गया है। बगदाद में इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी के घर पर ड्रोन हमला। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक कातिलाना हमले में इराकी वज़ीर आज़म महफूज रहे। ईरान, सऊदी अरब और अमरीका की मज़म्मत। अमरीका की तहकीकात में ताउन की पेशकश। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ स्कॉटलैंड में मुजाहरा। शदीद मौसम के बावजूद 1 लाख से ज्यादा अफराद ने माहौलियाती तबाही के खिलाफ मार्च करके मिसाल कायम कर दी। आलमी रहनुमाओं से मौसर इक़दामात का मुतालबा। शुरका का नारा था कि माहौलियात का मसला तबकाती और मेहनत कश का मसला है। शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम अबूधाबी के क्यूरेटर की पुरस्कार मौत। क्यूरेटर मोहन सिंह अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के आज के मैच की पिच भी इसी क्यूरेटर ने बनाई थी। What an incredible player he's been for the West Indies. Well, I'd love to play one more World Cup. I didn't announce any retirement, but they actually give me one game in Jamaica to go and, in front of my home crowd. Then I can say, hey guys, thank you so much. रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। अभी एक और वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में रिटायरमेंट के इशारे देने वाले क्रिस गेल ने रिटायरमेंट के बारे में वजाहत दे दी। कहा कि वो ग्राउंड में फन कर रहे थे। वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के बाद रिटायर हो गए हैं। के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुलूकार शहजाद रॉय मेहमान। सेगमेंट 500 के दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। 465 का स्कोर बना लिया। क्या दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत इलॉन मस्क अवाम के कहने पर 10% शेयर फरोख्त कर देंगे? इलेक्ट्रिक कार कंपनी के मालिक ने सोशल मीडिया पर राय मांग ली। 3 घंटे में 10 लाख लोगों की राय आ गई। 54% ने कहा बेच दें, तकरीबन 46% ने मना कर दिया। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के मशहूर गाने ऑल टू वेल की शॉर्ट वीडियो का टीजर जारी। गुलकारी और अदाकारी के साथ टेलर स्विफ्ट ने फिल्म तहरीर भी की है, हिदायतकारी भी खुद की है।